Hi guys. So we'll be starting off with the Insolvency Bankruptcy Code 2016. Now for the IBC, I have appeared in courts also with respect to this act, and I will be sharing some few the experiences with you. Now let's see. First is the Insolvency Bankruptcy Code. It has 5 parts. That is part 1, part 2, part 3, part 4, part 5. The entire structure of the act has 5 parts. Out of that, the first part is called as the preliminary. Okay, section 1 to 3. The next is the insolvency bankruptcy for corporates. The part 2 deals with insolvency of companies. Part 3 deals with insolvency of individuals and partnership firms. Next is part 4, talks about the regulatory authorities under the IBC. That's the part 4, and the part 5 are the miscellaneous provisions. So the structure, if you see, there are total 255 sections in the IBC. Out of these 255, and there are total 11 schedules. Okay, 11 schedules and section 255. Out of these parts, you tell me which is the most important for a company secretary. Like, as a company secretary, which one part would be more important? Is it insolvency, the preliminary, that is gives you the definition and the application, insolvency of companies, or insolvency of individuals, regulatory authorities, or miscellaneous? What do you feel? 2. So very important, that is part 2, and that will be the topic for the day as well. Now that is insolvency of corporates. So we know Jet Airways is in insolvency, there is Reliance Communications, there is many entities that have gone into the IBC. It would go under IBC part 2. The topic, in short, you could call it as CIRP process, that is Company Insolvency Resolution Process. Now in part 2 is further divided into few chapters. Let's see. Part 2 is divided into a total of 7 chapters. That is preliminary, again the insolvency bankruptcy process, that is given in the chapter 2. The liquidation process, अगर हम लोग उसको revive rehabilitate नहीं कर सकते companies को, तो उसको हम लोग liquidate कर देते हैं. Fast track process is given in certain cases. Voluntary liquidation that we have done, that is in section 59, and part 2 chapter 5. There is adjudicating authorities for corporates, which we will see now. Which are the adjudicating authorities? When I say adjudicating authorities, मतलब matter किधर जाएगा अगर insolvency का हुआ company related, so कहाँ पे जाएगा? I'm asking you, can you tell me कहाँ पे जाता होगा company की insolvency का matter? It would go in which court? It would go under NCLT, National Company Law Tribunal. So we will see. And then the offenses and penalties. Now when we see IBC 2016, okay, this entire code 2016 के अंदर आया. इसका ड्राफ्ट जो बना था, एक कमिटी अपॉइंट हुई थी, that is the bankruptcy reforms committee, BRLC committee. Now this committee was made under the chairmanship of Vishwanathan. We'll see. Now when he was appointed, there must be some reason for introducing the IBC code 2016. Now let's see what is the purpose of bringing the IBC. First of all, the international scenario we are seeing. International scenario, as per the World Bank, if you notice, the recovery process, for example, if I default, the creditor जिसने पैसे दिए हैं वो कोर्ट में जाएगा, तो उसको काफ़ी टाइम लगेगा. कितना टाइम लगेगा? Let's see. In United Kingdom, UK, the entire process for insolvency gets over within how much time? Within a period of 1 year. All developed countries, around 2 years it gets over. But for India, what was the time period to resolve? We all know matters go on and on and on, tariq pe tariq, and it goes on, drags on.
and an average time to complete a insolvency process is how much? Approximately 4.3 years. So 4 साल के ऊपर जाता है to recover. So will any creditor, international creditor, want to give a loan in India? He would fear the legal system in India. He would fear that I would be, if the guy defaults, I will be put into a long drawn process. Let's see the other way. अगर long drawn process भी है तो क्या problem है? Why can't we wait? Let's see. The other thing is time is money, and second, it's expensive. Let's see the next part. Again, World Bank stats has been given. In World Bank stats, if you see, the recovery rate, कि कितना recovery होता है per dollars, okay, how much is given? Recovery rate in terms of cents per dollar debt. $1 डेट दिया किसने और डिफॉल्ट हो गया $1 का, तो पार्टी को कितनी रिकवरी होगी, कितने सेंट्स रिकवर, क्या पूरा डॉलर रिकवर होता होगा या लेस? तुमको क्या लग रहा है कि कोई भी कंट्री में पूरा पैसा रिकवर होता होगा डिफॉल्ट के टाइम पे? नाउ इफ यू गो टू सी इन जापान इट इज 90%, इन 90 सेंट्स, तो काफ़ी सारा 90%, 70%. इंडिया का कितना रिकवरी रेट है? कैन यू सी? रिकवरी रेट इज अराउंड लेस देन 30. सो इट इज एक्चुअली 26 सेंट्स पर डॉलर. सो इफ $1 लोन मिलता है और डिफॉल्ट होता है $1 का, तो बाजू वाली पार्टी रिकवर $1 नहीं कर पाती. वी ऑल नो कॉम्प्रोमाइज हो जाता है. There are ways of dragging the matters, and it goes on, and you recover only 26 cents, that is 26% of the debt you have given. So it becomes a discouraging factor, and the stats is given by the World Bank. The next, if we go to see even the time to recover, we've seen it takes approximately 4 years, 4.5 years we've seen for the time to recover the debt. So it's pretty discouraging. Not only that, there in India, before the bankruptcy code, there were multiple laws regulating insolvencies. मतलब IBC के पहले बहुत सारे multiple legislations थे relating to, and no single law to deal with insolvency and bankruptcy in India. So what happened? The Insolvency Act was passed. Moment it was passed, उसकी वजह से जो पुराने एक्ट्स थे जिसमें अभी वो इट वॉज नॉट दैट सक्सेसफुल इन रिकवरिंग द मनी, दे वर रिपील्ड. तो कौन से एक्ट रिपील हो गए? एक है प्रेसिडेंसी टाउन्स एक्ट 1909 रिपील हो गया. सो यू डोंट नीड टू नो, इट वॉज द एक्ट बिफोर IBC. प्रोविजनल इंसॉल्वेंसी एक्ट 1920 रिपील हो गया. Not only that, even the Sikh Industrial Companies Act, जिसका मेन पर्पस था टू रिवाइव एंड रिहेबिलिटेट कंपनीज. मतलब जो सिका कंपनी थी उसका बहुत ही अच्छा यू कुड से कॉन्सेप्ट था. टेल मी वन थिंग, अगर कोई कंपनी इंसॉल्वेंट हो जाती है, क्या उनको बंद कर देना चाहिए कि रिवाइव करने का स्टेप करना चाहिए? व्हाट डू यू थिंक? वी शुड रिवाइव द कंपनी और किल इट? So, Sika had a concept of the rescue culture, adopted the rescue culture कि उनको revive करेंगे हम लोग, that is rehabilitate and revive करेंगे company so that we can save employment, we can save business, we can save tax revenues instead of liquidating insolvent companies. We will think कि what made it sick and how do we recover. However, इसके अंदर भी authorities बनाई थी, that was BIFR, एंड इसकी एक अपीलेट अथॉरिटी भी थी सो BIFR एंड appellate authority. Okay, now both these structures that were the authorities were made were not that successful, and because of which we had repealed Sika Act as well. 1985 was repealed. Then we still have these acts, और ये सब के रिप्लेसमेंट में कौन सा एक्ट आ चुका है?
in replacement of these acts, which act has been brought in? That is the Insolvency Bankruptcy Code 2016. Now, if we see act के पहले ये एक्ट लाने की ज़रूरत क्या थी? पीस ऑफ फर्स्ट इज द टाइम फैक्टर 4 years, सेकेंड इज द cost factor. You can't recover loans, only 26% of the loan given was recoverable in India, that too after waiting for 4 years. Next, in 2014-15, imagine the amount of bad loans that were there. We know Vijay Mallya, we know there were Nirav Modi, all these scams were there, loans were defaulted, and India in 2014-15, the banks had written off 5.7 trillion worth of bad loans. So 5.7 trillions का हम लोग का bad loans था in 2014-15. So we had to do something. So what we did is we introduced the Insolvency Bankruptcy Code. And what did the Insolvency Bankruptcy Code do? They had two important things. One is it will be a time bound process. They had given कि timeline इतने दिन में 330 days currently के अंदर रिकवरी हो जानी चाहिए, मैटर रिजॉल्व हो जाना चाहिए. ओके, इस IBC के अंदर थोड़ी अथॉरिटीज बनाई हैं. ओके, एज वी हैड सीन इन पार्ट 4 देयर वर अ सर्टेन अथॉरिटीज. उस अथॉरिटीज के अंदर वो लोग ने दिया है कि कौन सी अथॉरिटीज़ है. सबसे पहले IBC एक्ट बनाया था, उसका स्ट्रक्चर देखते हैं. टेल मी वन थिंग, डोंट यू थिंक विजय माल्या रैन अवे, ही वॉज अ फ्यूजिटिव, अ पर्सन हु रन्स अवे वॉज अ फ्यूजिटिव. नाउ माई क्वेश्चन इज व्हाई कुडंट द क्रेडिटर्स know the information beforehand, get a restraint order, already foresee that he would run away? Okay, so that was a lack of system. So usko resolve karne ke liye, to plug in that loophole, what they did, they introduced the concept of information utility. Information utility क्या करता है? डेटर्स जो डिफॉल्ट करते हैं उनका इंफॉर्मेशन इकट्ठा करता है और उसको ट्रेस करता है, उनके एसेट्स कहीं बेच ना दे बिफोर द क्रेडिटर्स गेट अ हैंड ओवर इट. मेरे को पता है अगर मेरा घर बैंक बेच डालेगी, उससे पहले ही मैं बेचने की कोशिश करूँगा. सो इंफॉर्मेशन यूटिलिटीज, द ऑब्जेक्ट ऑफ इट इज़ टू कलेक्ट एंड कोलेट इंफॉर्मेशन ऑफ द डेटर एंड हिज एसेट्स. सेकेंड इज इंसॉल्वेंसी प्रोसेस पूरा IBC करने के लिए हम लोग के पास में कोई प्रोफेशनल्स होने पड़ेंगे, दैट इज इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल्स. सो इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल्स हैव बीन मेड who will actually do the entire process of insolvency, bankruptcy, selling of assets, liquidation, वो सब एक प्रोफेशनल्स हैंडल करेंगे. इन प्रोफेशनल्स का नाम क्या है? इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल्स. नाउ ये इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल्स तुम्हें कहाँ से मिलेंगे, कहाँ पे है ये इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल्स? जैसे CA की एग्ज़ाम होती है, CS की एग्ज़ाम्स होती है, लॉ की एग्ज़ाम्स होती है, वैसे ही एक एग्जाम होगी फॉर इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल्स. यू क्लियर दैट एग्जाम एंड यू विल बिकम अ इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल. सो द इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल एजेंसीज जो है, दे आर नथिंग बट सेक्शन 8 कंपनीज. सेक्शन 8 कंपनीज अंडर द कंपनीज एक्ट आर NGOs. और कौन सी सेक्शन 8 कंपनीज अभी तक बन चुकी है? दैट इज ICAI की एक बनी हुई है, ICSI and ICWA. So what is the function of this? The function of these IPAs, that is insolvency professional agencies, is to conduct exams. तो ये जैसे ICSI काम करता है अपना, of they conduct exams. What else does ICSI do? ICAI, ICWA, they have memberships. They grant memberships and regulate the professionals. Clear? तो एग्जाम्स होगी IBC की,
और हम लोग ये एग्ज़ाम दे सकते हैं आफ्टर वी कंप्लीट आर CA, CS, CWA. We'll give and then we are eligible to become insolvency professionals. और इंफॉर्मेशन यूटिलिटीज़ क्या होती है? दे ट्राई टू ट्रेस, जैसे कोई डिफ़ॉल्ट होता है ना, कोई भी लेट्स से SBI को डिफ़ॉल्ट हुआ तो वो इंफॉर्मेशन यूटिलिटी एक डेटाबेस बना रहे हैं, उस डेटाबेस के अंदर अपलोड कर देंगे इंफॉर्मेशन कि भाई इसने मेरा डिफ़ॉल्ट किया है, तो सारे ही क्रेडिटर्स को इंफॉर्मेशन आ जाएगा कि इसने पहला डिफ़ॉल्ट किया है, बी अवेयर. सो लेट्स सी ये इनके जो पिलर्स हैं, ओके, और ये सबको रेगुलेट कौन कर रहा है? IBBI, इंसॉल्वेंसी बैंक्रप्सी बोर्ड ऑफ इंडिया. What is IBBI? It is a regulator just like SEBI regulates security markets. IBBI regulates, administers, makes laws, all related to insolvency and bankruptcy in India. So let's see. In short, the insolvency bankruptcy code. First is IBBI, जो इनके pillars हैं. Okay, 5 essential pillars बोल सकते हैं इसके. First is the regulatory authority for insolvency is yes. Second, adjudicating authority, मतलब matters कहाँ पे जाएंगे तो वो भी देखेंगे हम लोग. adjudicating authority, let's see. When I say adjudicating authority मतलब matters किधर जाएगा, so it depends कि तुम्हारा matter किसके related है. Is it a insolvency of a company or is it insolvency of a firm? As you all rightly pointed out कि पहले अगर insolvency होगा of a company तो matter will first go in NCLT, then after NCLT it will go to NCLAT, and after NCLAT it will go to the Supreme Court. Next, when it comes to insolvency of a firm or an individual, so it goes to DRT. Then from that you will go to DRAT, that is Debt Recovery Appellate Tribunal, and then if you're unhappy with that then you will go to the Supreme Court. So this is the adjudicating authorities under IBC. तो matters किधर जाएंगे, कौन सी कोर्ट्स में जाएंगे? या तो NCLT में जाएगा, नेशनल कंपनी लॉ ट्राइब्यूनल, या तो डेट रिकवरी ट्राइब्यूनल्स में जाएगा. कंपनी का हुआ तो it will go to NCLT and so on, and if it goes into a firm, partnership firm या individual का होगा तो it will go in this order. Clear है ना? So the pillars पे जा रहे अभी. Then we came IPAs. What were IPAs? They are nothing but CA, CS who conduct exams. They are specialized bodies whose task is to register the professionals after you clear your exams and then govern us. Insolvency professionals are appointed by IPAs. तो एग्जाम देंगे तो we become insolvency professionals. एंड हम लोग देखेंगे what is the role of resolution professional जो अभी कोड में आएगा. And the last is information utility. These are the 5 essential pillars in IBC. 5 pillars. The last is information utility. Now Malia type situation should not occur. That is why we have information utilities which will collect, collate also means collect, and then disseminate. सबको information देंगे, financial information of the debtor and his assets. Let's see. Now coming to the act, कि ये प्रोसेस होगा कैसे. ओके, नाउ लेट्स से टुडे देयर इज अ इंसॉल्वेंसी. द चैप्टर दैट वील बी डूइंग इज कॉर्पोरेट इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन प्रोसेस, which talks about insolvency of company. Clear? So let's see. First is अगर मैटर हुआ, okay, there is a insolvency. Let's see insolvency किस किस का हुआ है. So we've seen this was the bankruptcy legislative reform committee. It was headed by
TK Vishwanathan. Then we've seen the $5.7 trillion of bad debts. कंपनी जो अभी फ़िलहाल बैंक्रप्सी, ये जो पार्ट 2 ऑफ IBC के अंदर है, दैट इज़ जेट एयरवेज. नाउ जेट एयरवेज के ऊपर भी SBI ने केस किया है. SBI इज़ द creditor. Jet Airways has not been able to pay the debts. तो उनके ऊपर IBC प्रोसेस के अंदर मैटर चालू है. Even we have Anil Ambani also. Anil Ambani also is under the IBC code. So let's see what is the process and how does it happen. First is, जैसे default हुआ, we are trying to see what happens, okay? Insolvency of companies. So moment there is a default, what do you think the creditor will do? Creditor will file a case in NCLT, National Company Law Tribunal में वो जाएगा. Filing of the petition before the tribunal. Common sense है, if I tell you कि there is a default, okay, if I tell you कि default हुआ है तो कहाँ पे जाओगे तुम? एंड कंपनी का डिफ़ॉल्ट है तो यू विल गो बिफोर द NCLT. NCLT के पास में कौन कौन जा सकता है? दे हैव डिवाइडेड इट इनटू पार्ट्स, लाइक फाइनेंशियल क्रेडिटर्स जा सकते हैं, ऑपरेशनल क्रेडिटर्स जा सकते हैं और खुद कॉर्पोरेट डेटर जा सकता है. तो समझते हैं, आज अगर डिफ़ॉल्ट किया तो कौन जाएगा? SBI जाएगा. SBI इज नथिंग बट अ फाइनेंशियल क्रेडिटर. जेट एयरवेज का एग्जाम्पल देख रहे हैं. जेट एयरवेज का केस किसने फाइल किया? इट वॉज फाइल्ड बाय स्टेट बैंक ऑफ इंडिया. SBI is called as a financial creditor. What do you mean by a financial creditor? A financial creditor is a person who has extended a financial debt. Financial debt means जिस पे principal interest आता है, creditors, okay, which we will see later on also. तो सोचो अगर मैं एक लोन ले रहा हूँ बैंक के पास से, तो वो बैंक हो जाएगी फाइनेंशियल क्रेडिटर और मैं हो जाऊँगा डेटर, कॉर्पोरेट डेटर, कंपनी डेटर, who I have to repay the loan. Now ज़रूरी है कि सिर्फ फाइनेंशियल क्रेडिटर्स ही होंगे? देर इज अ कॉन्सेप्ट ऑफ ऑपरेशनल क्रेडिटर्स ऑल्सो. ना ऑपरेशनल क्रेडिटर्स कौन होते हैं? दोज हु ओन अ ऑपरेशनल डेट. व्हाट इज अ ऑपरेशनल डेट? या तो एम्प्लॉइज या फिर तुम्हारा सप्लायर्स, डे टू डे तो तुम्हारे सप्लायर्स होते हैं. तो इसमें क्या हुआ था कि so many times when a company receives goods and services, so तुम सोचो अगर एक कंपनी है, ओके, ये कंपनी को सप्लायर है, सप्लायर ने गुड्स और सर्विस दी, ओके, अब इन रिटर्न कंपनी को रीपे करना चाहिए, इसका प्राइस देना चाहिए, बट कंपनी ने क्या दिया? धोखा. ओके, दे सेड नहीं रीपे करेंगे, जाओ. सो नाउ व्हाट इज द ऑप्शन अवेलेबल टू द सप्लायर? द सप्लायर विल गो बिफोर NCLT. ना NCLT के पास में जाएंगे कि भाई इस कंपनी ने मेरे पास से गुड्स एंड सर्विसेज लिए हैं, they have to repay me money, they have not paid me money. So when they go here, they will file a case. But are they financial creditors? Have they given loan? No. So supplier will be called as a operational creditor. Operational creditors are employees and suppliers. They will file a case of suppliers and NCLT will then take up the matter. क्या था clear? So कौन जा सकता है? ऑपरेशनल क्रेडिटर्स, फाइनेंशियल क्रेडिटर्स और
कॉर्पोरेट डेटर खुद, मैंने डिफॉल्ट किया, मैं खुद ही कोर्ट के पास में जा रहा हूँ. वाई वुड आई डू दैट? जेट एयरवेज खुद ही केस फाइल कर देगा. ऐसा कोई क्यों करेगा? बिकॉज अंडर द CIRP process, the objective is not always to kill the company, it's not always to sell off the company. The first step that we will try to do is try to revive the company, rehabilitate the company. वो करेंगे. अगर वो नहीं हुआ तो liquidate करेंगे. तो वो खुद भी भाग के आ सकता है कि मुझे बचा लो, क्योंकि जैसे मैटर आता है ना NCLT के पास में, तुम भाग के आ गए कि मुझे बचा लो, मेरे को थोड़ा ब्रीदिंग स्पेस दे दो, मैं वापस रिवाइव हो सकता हूँ. सो NCLT विल से कम एंड दे विल डिक्लेयर समथिंग कॉल्ड एज मोराटोरियम पीरियड. डिक्लेयर्स मोराटोरियम पीरियड. ये क्या है मोराटोरियम पीरियड? एक स्टे ऑर्डर आ जाएगा, एक स्टे ऑर्डर आ जाएगा. इसके बाद में क्रेडिटर्स कुछ नहीं कर सकते, इनके हाथ बन जाते हैं. दे हैव टू वेट टिल द एंटायर प्रोसेस इज ओवर. सो that is one of the reasons why a corporate debtor could also file an insolvency case, saying insolvency का ये मतलब नहीं है कि तुम हमेशा कंपनी को एंड ही कर दोगे. their objective will be to revive the company. okay, then एक बार तुमने केस फाइल किया, फाइनेंशियल क्रेडिटर कैन फाइल. so let's see what is the status. NCLT है. NCLT के पास में कौन केस कर सकता है? तो सिंपल सी बात है, क्रेडिटर केस फाइल करेगा कि मेरा लोन नहीं दे रहा है. ये क्रेडिटर को दो टाइप में डिवाइड किया है. एक है फाइनेंशियल क्रेडिटर्स और दूसरे हैं ऑपरेशनल क्रेडिटर्स. फाइनेंशियल क्रेडिटर्स क्या है? जिसने लोन दिया है, जिस पे प्रिंसिपल एंड इंटरेस्ट की बातचीत आती है. वेयरएज operational debtors are suppliers or of goods and services, or they are employees जिनको अभी तक पगार मिला नहीं है. तो दो कैटेगरीज में. तुम्हें क्या लगता है ज़्यादातर झगड़े NCLT में जो केस फाइल करते होंगे वो फाइनेंशियल क्रेडिटर्स के होते होंगे या ऑपरेशनल क्रेडिटर्स के? ज़्यादातर डिस्प्यूट्स कहाँ पे होता होगा? So it is mostly operational creditors. एम्प्लॉयज़ का पगार नहीं दिया या गुड्स एंड सर्विसेज के तुम रीपेमेंट नहीं दे रहे हो. तो वी ऑल्सो सीन तो वन मेड एन एप्लीकेशन, वील सी, आई शो यू दैट ऑल्सो. सो वंस द मैटर इज फाइल्ड बाय द पार्टीज, और इट कुड ऑल्सो बी फाइल्ड बाय द कॉर्पोरेट डेटर. द खुद कॉर्पोरेट डेटर ही फाइल कर देगा केस कि भाई मुझे बचा लो. NCLT विल डिक्लेयर मोराटोरियम पीरियड. मोराटोरियम पीरियड में नो एसेट्स कैन बी सोल्ड, नथिंग कैन बी डन, एंड NCLT विल देन लुक इनटू द मैटर कि इस कंपनी को रिवाइव करने के क्या क्या तरीके हैं, एंड अगर नहीं है देन इट विल डिक्लेयर अ इंसॉल्वेंसी. नेक्स्ट, एक बार NCLT के पास में मैटर चला गया, देन NCLT will appoint a interim resolution professional, IRP, interim resolution professional. ये कौन होगा interim resolution professional? It will be told by they will only recommend. So they will recommend कि इनको कौन चाहिए, इनका resolution professional to do the entire liquidation CIRP process. So the creditors और द कॉर्पोरेट डेटर्स, दे विल ओनली से कि इनको कौन चाहिए जो उसका पूरा प्रोसेस करेगा. एक बार ये हो जाएगा इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन प्रोफेशनल, देन देयर विल बी अ कमिटी ऑफ क्रेडिटर्स. ही विल कॉन्स्टिट्यूट अ कमिटी ऑफ क्रेडिटर्स. ये कमिटी ऑफ क्रेडिटर्स क्या करेगा? वो खुद स्टडी करेगा कि IRP विल मेक द क्रेडिटर्स की कमिटी. क्रेडिटर्स के कमेटी में कौन कौन होगा कि किसने पैसे दिए हैं, किसको भरना है, क्लेम्स, वेरिफिकेशन, उसके बाद में वो ये कमेटी बनाएगी. अब ये जो कमेटी है, दिस विल देन डिसाइड कि उस इंटरिम रेजोल्यूशन प्रोफेशनल को आगे कंटिन्यू करना है कि एक नया रेजोल्यूशन प्रोफेशनल बनाना है. सो द
दे विल अपॉइंट द रेजोल्यूशन प्रोफेशनल. इट कुड बी द IRP को ही अपॉइंट कर दे या एक नए रेजोल्यूशन प्रोफेशनल को अपॉइंट करेंगे. आफ्टर दैट IRP को अपॉइंट किया, देन द रेजोल्यूशन प्रोफेशनल विल मेक अ रेजोल्यूशन प्लान कि कैसे रिवाइव करने के क्या क्या टेक्निक्स है. इट विल आस्क वेरियस पार्टीज इफ एनीवन वांट्स टू हैव अ रिवाइवल प्लान. तो काफ़ी लोग उसको एप्लीकेंट्स आएंगे. एप्लीकेंट्स कुड बी एनीवन. फॉर एग्जाम्पल दे विल से कि यू नो वी कैन रिवाइव, वी आर रेडी टू फंड अगेन, we will do XYZ to revive the company. तो all the other people will come forward. एक बार वो resolution plan बनेगा, then adjudicating authority, that is the NCLT, will look into the matter whether the plan is good or no. अगर NCLT ने approve कर दिया, adjudicating authority ने approve कर दिया, तो then उसका revival की बात हो जाएगी. और अगर reject हो गया कि नहीं बना सकते, तो फिर बाद में बोलेंगे भाई आपको कोई भी हालत में रिवाइव हो ही नहीं सकते हो आप, तो यू विल बी लिक्विडेटेड. लिक्विडेशन होगा. क्लियर है ना? सो दिस इज द प्रोसेस. नाउ लेट्स सी व्हाट आर द सेक्शंस एंड व्हाट वी हैव टू डू टुडे. दीज आर द इंपॉर्टेंट सेक्शंस दैट वी शुड नो. नाउ द फर्स्ट वन इज सेक्शन 4. सेक्शन 4 क्या बोलता है कि ये पार्ट 2 जो है, पार्ट 2 दैट इज कंपनी का इंसॉल्वेंसी, ये कब अप्लाई होगा? जब लोन अमाउंट, ओके, द डिफॉल्ट अमाउंट इज अप टू 1 लाख. मतलब 1 लाख के नीचे रहेगा तो मैटर नहीं उठेगा. इफ सेंट्रल गवर्नमेंट वांट्स दिस 1 लाख लिमिट कैन बी इंक्रीज बाय सेंट्रल गवर्नमेंट टू 1 CR. अभी प्रेजेंटली कितना बोल रहे हैं वो लोग? 1 लाख है. इफ गवर्नमेंट वांट्स दे कैन इंक्रीज दिस 1 लाख लिमिट टू 1 crore. सेकेंड, सेक्शन 5 gives the definitions. Then comes who may institute a CIRP process. So 3 parties can institute CIRP process. First is the financial creditors, then it is operational creditors, and lastly it's the corporate debtors who can file this case. Next, financial creditors can file under section 7. They will make an application under section 7. Okay. Then section 8 में, so section 7 में financial creditors will file the case. इसके बाद में क्या आता है? सेक्शन 8. सेक्शन 8 में ऑपरेशनल क्रेडिटर्स डायरेक्टली केस नहीं फाइल कर सकते हैं एनसीएलटी में. उनको क्या करना पड़ेगा? पहले एक डिमांड नोटिस देना पड़ेगा. ऑपरेशनल क्रेडिटर्स कैन नॉट डायरेक्टली फाइल, whereas financial creditors can directly file. On default they will file, whereas operational creditors will have to first give a demand notice. डिमांड नोटिस देंगे, बोलेंगे कि आप हमारा गुड्स एंड सर्विसेज के पैसे दे दो. गुड्स एंड सर्विसेज के पैसे नहीं मिलेंगे तब वो लोग सेक्शन 9 के अंदर केस फाइल कर सकते हैं. क्लियर? एंड देन सेक्शन 10 के अंदर कॉर्पोरेट डेटर विल फाइल. पर्सन्स हु आर इनएलिजिबल, जिसका ऑलरेडी CIRP रिजेक्ट हो चुका है, दो आर ऑलरेडी देयर, दे आर इनएलिजिबल, दैट इज गिवन. द टाइम लिमिट टू कंप्लीट द CIRP प्रोसेस. तो ये पूरा जो एक्ट है IBC इज अ टाइम बाउंड एक्ट. तो टाइम बाउंड में क्या बोला है? इट शुड बी कंप्लीटेड विद इन 180 days. बट अगर 180 days में नहीं हो सकता है तो उसको 1 टाइम एक्सटेंशन मिल सकता है ऑफ 90 days. एक्सटेंशन हो सकता है.
तो तुम देखोगे यहाँ पे द एक्सटेंशन मिला था टू वन ऑफ द एंटिटीज. So the extension was granted. After that टोटल कितने दिन हुए? 270 डेज. 270 डेज का टाइम है जिसके अंदर ये पूरा कंप्लीट हो जाना चाहिए. दिस इज द टाइम लिमिट टू कंप्लीट योर CIRP प्रोसेस. अब क्या हुआ कि दे रियलाइज कि यार 270 डेज है, but sometimes due to procedural delay, some litigation or little more extension has been given, and they said कि इसको further और 60 days से आगे कर सकते हैं. That is 330 days is the maximum time limit within which it should get completed. So government had issued a notification कि यार एक्ट के अंदर 270 दिया हुआ है, but due to this litigation, due to legal aspects, 330 days is the final time limit. Clear it now? Now we'll see again what is the process and then we'll start from the module. This is the entire process under IBC. Now let's see. First is what is the process under IBC? सबसे पहले एक डिफ़ॉल्ट होगा. जैसे कंपनी ने डिफ़ॉल्ट किया, फाइनेंशियल क्रेडिटर सीधा केस फाइल कर सकते हैं NCLT के अंदर. ऑपरेशनल क्रेडिटर्स डायरेक्टली फाइल नहीं कर सकते. उनको क्या देना पड़ेगा? एक डिमांड नोटिस देना पड़ेगा. दे विल हैव टू वेट फॉर 10 days. आफ्टर 10 days ऑफ सेंडिंग द डिमांड नोटिस टू द डेटर. तो सोचो अगर मैं एक सप्लायर हूँ, मेरा पैसा नहीं मिला, तो मैं सीधा NCLT में नहीं जा सकता हूँ. मेरे को पहले डिमांड नोटिस देना पड़ेगा, उसमें 10 दिन रुकना पड़ेगा, फिर आफ्टर 10 days ऑफ सेंडिंग द डिमांड नोटिस आई कैन फाइल अ केस इन NCLT. ये कौन? ऑपरेशनल क्रेडिटर. और फाइनेंशियल कॉर्पोरेट डेटर भी डिफ़ॉल्ट के टाइम पे सीधा NCLT के पास में जा सकता है. यू कैन अप्रोच NCLT. नाउ when they approach, they will also recommend someone called as a IRP. That is who will do this entire process. That is the insolvency resolution process. अब ये लोग किधर केस फाइल करेंगे? Before the adjudicating authority. That is your NCLT. NCLT को टाइम मिल रहा है to respond. How much time are they getting to respond? They're getting a time of 14 days to respond. फोर्टीन डेज में या तो वो एक्सेप्ट कर सकते हैं या तो वो रिजेक्ट कर देंगे. सोचो तुम्हारा एप्लीकेशन एक्सेप्ट हो चुका है तो तुम्हारा CIRP प्रोसेस पूरा चालू हो जाएगा. अब क्या होगा वो प्रोसेस में आगे देखेंगे. बट अगर तुम्हारा प्रोसेस नहीं एक्सेप्ट किया, रिजेक्ट हो गया, so you will get 7 days to rectify your default. You will get 7 days. अगर NCLT ने रिजेक्ट कर दिया तो 7 दिन का टाइम मिलेगा. बताओ क्यों नहीं रिजेक्ट करे, क्यों हम लोग इसको एक्सेप्ट करें. तो 7 days का तुम्हें शो कॉज नोटिस देंगे. अगर तुमने सारा सेटिस्फाई कर दिया या तुम्हारे पिटिशन का डिफेक्ट्स क्लियर कर दिए तो वापस फिर CIRP प्रोसेस चालू हो जाएगा. देन दे विल एक्सेप्ट द प्रोसेस. अब प्रोसेस में क्या होता है? सबसे पहले जो IRP होता है, ही विल प्रिपेयर अ कमेटी ऑफ क्रेडिटर्स. कॉमन सेंस है ना. अगर मैं आ रहा हूँ IRP में, रेजोल्यूशन प्रोफेशनल अपॉइंट किया मेरे को इन XYZ कंपनी में, बोलूँगा भाई किसका पैसा डिफ़ॉल्ट किया है, कौन है, जरा उसकी कमेटी बनाऊँगा मैं. दैट कमेटी का नाम क्या है? कॉल्ड एज कमेटी ऑफ क्रेडिटर्स. ये कमेटी ऑफ क्रेडिटर्स क्या करेंगे? जैसे अपॉइंट हुआ ना, वो लोग सबसे पहले RP को अपॉइंट करेंगे, रेजोल्यूशन प्रोफेशनल, क्योंकि पहला वाला जो था वो इंटरिम था. इंटरिम रेजोल्यूशन प्रोफेशनल ओनली सिट इन द कमेटी ऑफ क्रेडिटर्स. कमेटी ऑफ क्रेडिटर्स विल देन डिसाइड कि यार इसको आगे बढ़ाना है कि नए वाले को अपॉइंट करना है. तो एक रेजोल्यूशन प्रोफेशनल अपॉइंट होगा. वो रेजोल्यूशन प्रोफेशनल विल बी अपॉइंटेड बाय 66% ऑफ द पीपल.
यहाँ पे 75% दिया हुआ है, जो भी डिसीजंस लेंगे वो सब मेजॉरिटी लोग के साथ में रहेंगे। 75 दिया है पुराने में, नाउ दे हैव मेड एन अमेंडमेंट एंड दे हैव मेड इट 66% का कंसेंट आएगा। ये जो रेजोल्यूशन प्रोफेशनल है, ही विल मेक अ इंफॉर्मेशन मेमोरेंडम। ये इंफॉर्मेशन मेमोरेंडम में क्या लिखा होगा, सब कुछ डिटेल्स होंगे कंपनी के बारे में, कौन है, क्या है, कब डिफॉल्ट हुआ था, व्हाट आर द रीजन फॉर डिफॉल्ट, ऑल द डिटेल्स विल बी गिवन। आफ्टर दैट इंफॉर्मेशन मेमोरेंडम में कौन कौन लोग अप्लाई कर रहे हैं टू रिवाइव द कंपनी, क्या ऑप्शंस दे रहे हैं। हो सकता है कोई इन्वेस्टर आ जाए, जैसे येस बैंक। येस बैंक एक ऑलमोस्ट यू कुड से इट्स गोइंग इनटू फाइनेंशियल ट्रबल। तो येस बैंक के लिए काफ़ी इन्वेस्टर्स आए सामने कि भाई आप लोग हम लोग को, हम आपको इन्वेस्ट करते हैं डूबती कंपनी के अंदर, हमको ये राइट्स दो, ये पावर्स दो, एक बार रिवाइव हो गया तो हमको भी चीप प्राइस पे मिल जाएगा ये कंपनी, टैक्स बेनिफिट्स मिल जाएंगे, काफ़ी सारे बेनिफिट्स रीजन रहते हैं फॉर टेकिंग ओवर अ लॉस मेकिंग कंपनी ऑल्सो। सो रेजोल्यूशन एप्लीकेंट्स विल बी देयर, एप्लीकेंट्स विल अप्लाई कि यार हम ये टेक्निक्स है। इंफॉर्मेशन मेमोरेंडम बनेगा, उससे क्या बनेगा, एक रेजोल्यूशन प्लान बनेगा। उस प्लान को रेजोल्यूशन प्रोफेशनल विल सबमिटेड टू द कमिटी ऑफ क्रेडिटर्स उसकी मीटिंग के अंदर। एक बार कमिटी ऑफ क्रेडिटर्स या तो एक्सेप्ट कर दिया प्लान, बोले अरे ये तो बहुत ही अच्छा प्लान है, फिर क्या हुआ, आरपी ने भी एक्सेप्ट कर दिया प्लान, कंपनी एक्सेप्ट द प्लान और आरपी एक्सेप्टेड द प्लान, अथॉरिटी एक्सेप्टेड द प्लान, ओके, इवन आरपी इम्प्लीमेंट्स द प्लान, ओके, सब कुछ प्लान हो गया तो मैन खत्म हो जाएगा। Like let's say everything went as per the resolution plan, but if the committee of creditors rejects the resolution plan, they say नहीं 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 हमको ये नहीं चलेगा, तो law says ठीक है, too bad, we'll put the company into liquidation. Okay, so the creditors will also think that ये plan को accept करना चाहिए कि नहीं, resolution professional ने बनाया तो ठीक है, फिर वापस अथॉरिटी का भी, NCLT का भी अप्रूवल चाहिए और फिर चलेगा। अगर नहीं हुआ, अगर कमिटी ऑफ क्रेडिटर्स ने अप्रूव कर दिया बट इट हैज़ बीन रिजेक्टेड बाय NCLT ने रिजेक्ट कर दिया, तो भी इसको लिक्विडेशन में डाल देंगे। सो इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट दैट द प्लान मेड बाय द प्रोफेशनल हैज़ टू बी एक्सेप्टेड बाय द कमिटी ऑफ क्रेडिटर्स फर्स्ट, देन by NCLT, then they say it must be a nice plan and then they will try to revive it. But अगर revive नहीं कर सकते then it will go into liquidation. Clear it now? Now let's see. So these are the sections that you need to remember for this chapter. First is the section 4 talks about application of part B. It applies to defaults if it is up to 1 crore or 1 lakh. This 1 lakh can be increased to 1 crore. 5 gives about definitions. 6 who may initiate the case. अगर फाइनेंशियल क्रेडिटर है तो वो अपना सेक्शन 7 में जाएगा। सेक्शन 7 ऑपरेशनल क्रेडिटर रहेगा तो सीधा केस नहीं फाइल कर सकता है, उसको पहले डिमांड नोटिस देना पड़ेगा सेक्शन 8 के अंदर, डिमांड नोटिस, और अगर डिमांड नोटिस दे दिया फिर उसके 10 दिन के बाद में वो केस फाइल कर सकता है सेक्शन 9 में। कॉर्पोरेट डेटर कितने में करेगा, सेक्शन 10 के अंदर। कौन कौन एलिजिबल नहीं है तो वो लोग लिस्ट देंगे, जिसके ऊपर ऑलरेडी केस चालू है या उसको रिजेक्ट हो चुका है तो वो एलिजिबल नहीं है। एंड लास्टली द टाइम लिमिट, द अपडेटेड टाइम लिमिट इज 30 डेज, 330 डेज। तो पहले 180 डेज है, फिर और एक्सटेंशन मिल सकता है 90 डेज का, एंड 270 डेज इन टोटल। ड्यू टू प्रोसीजरल रीजन दे हैव रिकग्नाइज कि थोड़ा आगे भी जा सकता है, तो 330 डेज तक मैटर ख़त्म होना चाहिए। लेट्स सी, नाउ वील स्टार्ट ऑफ फ्रॉम द मॉड्यूल एंड वील फिनिश इट ऑफ।
So lesson 15, petition for company insolvency resolution process. So let's see, you can take the markings with me. So we've seen कौन से पार्ट में आता है CIRP प्रोसेस. इट कम्स अंडर पार्ट 2. इसमें सेक्शन 4 क्या बोलता है? सेक्शन 4 इफ यू सीन एप्लीकेशन मतलब कभी अप्लाई होगा. सो सेक्शन 4 सेज पार्ट 2 ऑफ द कोड shall apply to matters where the corporate debtor where the minimum amount of default is 1 lakh. तो minimum amount of default कितना है? 1 lakh. सेंट्रल गवर्नमेंट चाहे तो इसको इंक्रीज कर सकती है अप टू 1 करोड़. 2 पार्ट में डिवाइडेड है. यू कुड से पहले उसको हम लोग रिवाइव करने की कोशिश करेंगे. CIRP प्रोसेस में रिवाइव करने की कोशिश करते हैं, बट अगर रिवाइव नहीं होगा तो हम उसको नेक्स्ट पार्ट में, इफ नथिंग कैन बी डन टू रिवाइव, देन वी विल लिक्विडेट द कंपनी. So in CIRP process, first efforts are given to revive the company, to revive and rehabilitate the company. And if that cannot be carried out, then we will have the liquidation process. Now let's see. After this, we have seen section 4 के बाद में आता है section 5. Section 5 gives you the definitions. Now section 6 talks who can file cases for under this. Part 2, that is financial creditor, your operational creditor and the corporate debtor itself. So they will all do when there is a default. Default मतलब क्या? non payment of debt. तो non payment of debt हुआ या तो एक छोटा सा पार्ट या installment. They have given what do you mean by financial debt and financial creditor means a person who owes a financial debt, and operational creditor कौन है? Who owns a operational debt. तो पहले financial creditor देखते कौन है. So financial creditors are those who have extended a financial debt. तो financial debt मतलब क्या? कंपनी ने पैसा बोरो किया किसके पास से? क्रेडिटर्स के पास से. एग्जाम्पल SBI के पास से पैसा बोरो किया, तो अभी कंपनी को क्या देना है? प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट, उनका EMI देना है, बट EMI नहीं देगी तो फिर बाद में ये जो क्रेडिटर है SBI विल बी कॉल्ड एज अ फाइनेंशियल क्रेडिटर. दे विल गो टू द NCLT मूवमेंट देयर इज अ डिफॉल्ट. जैसे डिफॉल्ट हुआ वो केस फाइल करेंगे. नेक्स्ट, सो दे हैव गिवन हु आर फाइनेंशियल क्रेडिटर्स, इवन डिबेंचर होल्डर्स आर देयर. और एक इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट के बाद में दे हैव सेड इवन रियल एस्टेट अलॉटीज कैन बी कंसिडर्ड टू बी फाइनेंशियल क्रेडिटर्स. समझते हैं? तुम सोचो कि मैंने घर बाई किया, घर एक अंडर लोधा का प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट किया, तो मैंने पैसे दिए हैं, ठीक है, तो मेरा पैसा गया है कंपनी को और लोधास को, तो उनके पास में मेरा पैसा है. दे आर लाइक इट्स कंसिडर्ड एज अ बोरोइंग. दे शुड गिव मी अलॉट मी द फ्लैट. बट अगर टाइमलाइन पे नहीं हुआ तो मैं भी एक अग्रीव पर्सन अप्लाई कर सकता हूँ फॉर मेकिंग द कंपनी इंसॉल्वेंट, और CIRP प्रोसेस के लिए अप्लाई कर सकता हूँ. सो अगर तुमने कोई घर अप्लाई किया है अंडर कंस्ट्रक्शन फ्लैट और उस पर डिफ़ॉल्ट कर दिया बिल्डर ने, और बिल्डर एक कंपनी है, तो तुम केस कर सकते हो इन NCLT. देन जैसे डिफ़ॉल्ट हुआ तुम केस कर सकते हो. सेक्शन 7 देखते हैं अभी, विच वी वर सीइंग आफ्टर सेक्शन 6. देन वी आर कमिंग टू सेक्शन 7. सेक्शन 7 में क्या दिया है कि फाइनेंशियल क्रेडिटर जैसे डिफ़ॉल्ट हुआ NCLT में जाएगा कि देखो इसने मेरा पैसा नहीं दिया है. सो लेट्स सी, ऑफ फाइनेंशियल क्रेडिटर अगर कभी कभार क्या रहता है, कंसोर्शियम फाइनेंसिंग रहता है, ग्रुप फाइनेंसिंग रहता है. ओके, देयर इज अ कलेक्टिव लोन हैज बीन गिवन, सो जॉइंट एप्लीकेशन विल बी गिवन. तो इफ यू हैव सीन इन विजय माल्या केस, इट वाज अ कंसोर्शियम फाइनेंसिंग वेयर 10 banks had got together and then they had given loan to Kingfisher Airlines. So
ऑल ऑफ देम विल फाइल अ जॉइंट एप्लीकेशन, मतलब ऑल ऑफ देम में से कम 10% लोग को लगना चाहिए कि केस फाइल करना चाहिए कोर्ट में. सो फाइनेंशियल क्रेडिटर may file an application against the corporate debtor when the default has occurred. So very very important, वो कब फाइल करेंगे, जैसे डिफॉल्ट हुआ तभी. अगर सब जॉइंट है तो कम से कम 100 लोग या 10% लोग को इकट्ठा होकर फिर जॉइंट एप्लीकेशन फाइल कर सकते हैं इफ देयर आर मोर देन 1 क्रेडिटर्स. नेक्स्ट, द फाइनेंशियल क्रेडिटर शैल मेक एन एप्लीकेशन इन सच फॉर्म एंड फीस विद दैट मे बी प्रिस्क्राइब. नाउ ऑब्वियसली काफ़ी सारे फॉर्मेट्स दिए हुए हैं, you will have to make in the form and manner in which it is prescribed, और फिर तुमको पेटिशन डालना पड़ेगा. अब जो एप्लीकेशन डालोगे उसमें से ये सारे अटैचमेंट्स होंगे. तो अभी क्या था, जब हम लोग ने भी केस के लिए जाते थे तो सबसे पहले NCLT के अंदर एक रजिस्ट्री रहती है, ओके, फ्रंट काउंटर, उसके अंदर ओके दे विल आस्क योर पेटिशन एंड इन द पेटिशन वो लोग ये सारी चीज़ें पूछते हैं. क्या पूछते हैं, एप्लीकेशन शैल फर्निश प्रूफ ऑफ डिफॉल्ट, प्रूफ ऑफ डिफॉल्ट कि भाई डिफॉल्ट हुआ है उसका प्रूफ क्या है, आप पेटिशन में डालो. नेम ऑफ रेजोल्यूशन प्रोफेशनल, आप कौन चाहते हो, ये पूरा जो प्रोसीडिंग्स है और जो सेलिंग ऑफ एसेट्स या जो भी प्लान बनाएगा उसका कोई नाम है आपको देना ही है. और लास्ट में एनी अदर इन्फॉर्मेशन एज मे बी स्पेसिफाइड, तो और कोई भी इंफॉर्मेशन रहेगा देना पड़ेगा. अब फाइनेंशियल क्रेडिटर ने किधर केस फाइल किया, NCLT में. NCLT हियर इज द एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी. NCLT को कितने दिन का टाइम मिलता है, हम लोग ने देखा था 14 डेज का टाइम. तो NCLT 14 डेज में या तो एक्सेप्ट कर सकती है या रिजेक्ट कर सकती है. तो या तो वो एडमिट कर सकते हैं एप्लीकेशन या क्या कर सकते हैं, रिजेक्ट कर सकते हैं. तो लेट्स से एडमिट कर दिया तो सीधा द प्रोसेस है स्टार्टेड. बट अगर रिजेक्ट कर दिया तो 7 दिन का टाइम मिलता है टू रेक्टिफाई योर मिस्टेक. नाउ 7 डेज का टाइम मिलेगा. And then matter will go on. Now coming to this insolvency resolution by operational creditor. So now operational creditors होते कौन है, they are suppliers. तो एक बार ऐसा ही था, तो I'll show you one case. उसके अंदर क्या रहता है कि तुम सीधा केस नहीं फाइल कर सकते हो, तुमको सबसे पहले एक सेक्शन 8 का डिमांड नोटिस देना है. सेक्शन 8 में एक डिमांड नोटिस होता है, वो तुमको देना पड़ता है. और डिमांड के अंदर तुमको बताना पड़ेगा कि उसने कोई भी मेरे बैंक अकाउंट में क्रेडिट नहीं हुआ है, बैंक अकाउंट स्टेटमेंट्स, उसका लेजर अकाउंट, वो सब तुमको देना पड़ेगा. फिर बाद में 10 दिन तक रुकना पड़ेगा. 10 दिन के बाद में अगर पैसा नहीं आया ओके तो फिर बाद में तुम केस फाइल कर सकते हो, फाइलिंग ऑफ केस. सो लेट्स सी. ये एक पेटिशन है, पेटिशन का फॉर्मेट भी कौन सा है, वो ये रहा. सी डिमांड नोटिस कौन से सेक्शन के अंदर है, इट इज अंडर सेक्शन 8 ऑफ द IBC. डिमांड नोटिस फॉर पेमेंट अंडर द IBC कोड 2016. इट कम्स अंडर रूल 5 ऑफ द इंसॉल्वेंसी बैंक्रप्सी एप्लीकेशन एंड एडजुडिकेटिंग रूल्स 2016. उसके अंदर दिया है कि किसको दे रहे, सब्जेक्ट डिमांड नोटिस, डियर सर मैडम. तो उसमें पर्टिकुलर्स ऑफ ऑपरेशनल डेट कि तुमने क्या गुड्स दिया है, क्या सर्विस है, कितनी सैलरी थी, सब डिटेल्स देना पड़ेगा तुमको. एक बार दिया फिर तुमको साइन करके ये तुम्हारा ख़त्म हो गया, ये तुम्हारा फॉर्मेट ही है. तो इसमें आई शो यू वी हैड मेड वन एप्लीकेशन फॉर वन पर्टिकुलर पर्सन एंड द नेम्स हैव बीन चेंज. दिस इज अ डिमांड नोटिस हाउ इट इज सेंट. तो टू केसरा सरा प्राइवेट लिमिटेड. तो ये कॉर्पोरेट डेटर थे, ये लोग ने पैसा नहीं दिया था हमारे क्लाइंट को, तो हम लोग केस कर रहे डिमांड नोटिस फॉर रिकवरिंग मनी फ्रॉम कॉर्पोरेट डेटर, दैट इज केसरा प्राइवेट एंटरप्राइजेस. दिस इज लेटर इज अ डिमांड नोटिस. तो हम लोग ने दिया है कि कितने लाख का लोन है, उस पर इंटरेस्ट कितना है, डिटेल्स कितना है, ओके सब कुछ देना पड़ेगा कि कितने तुमने गुड्स एंड सर्विसेज दिए हैं etc. This is the petition and it will be signed by the parties. Clear है ना? This is like we have to, it has to be signed, authenticated by a professional. So this is by CS Samina Jahangir, my sister. So this is our firm that we had done.
नाउ फर्दर इफ वी सी, तो एक डिमांड नोटिस देना पड़ेगा. तो आई हैड ओनली गॉन टू द कोर्ट टू गिव द डिमांड नोटिस, यू नो, फॉर फाइलिंग द एप्लीकेशन अंडर सेक्शन 9. तो जैसे सेक्शन 9 के अंदर गए तो पेटिशन लेके गए थे. तो पेटिशन के अंदर वो लोग बोल रहे हैं, देखो सेक्शन 8 में क्या लिखा है. सेक्शन 8, एन ऑपरेशनल क्रेडिटर मे ऑन अकरेंस ऑफ डिफॉल्ट डिलीवर अ डिमांड नोटिस. द कॉर्पोरेट डेटर को अभी नोटिस आएगा विद इन 10 days ऑफ रिसीप्ट ऑफ द डिमांड नोटिस. 10 दिन का टाइम मिल रहा है उसको रिप्लाई करने के लिए. तो रिप्लाई में क्या बोलेगा कि उसका एक डिस्प्यूट है कि गुड्स एंड सर्विसेज जो मैंने पार्टी ने, ज़्यादातर क्या होता है पार्टीज बोलते हैं कि इसने जो माल दिया है वो अच्छा नहीं है. सो ज़्यादातर क्या बोलेंगे वो लोग कि जो माल है वो इतना अच्छा नहीं है, इसके लिए हम लोग का डिस्प्यूट था, इसके लिए पैसा नहीं दिया. तो NCLT will then not take up the matter. If there is a dispute, NCLT will say go to a civil court and rectify it. You can't file for insolvency. पहले आप ऑर्डर लेके आओ कि उसने आपका पैसा डिफॉल्ट किया है, confirmed, बिकॉज उसका भी पॉइंट है कि गुड्स एंड सर्विसेज में नॉट ऑफ द क्वालिटी और नॉट एज पर द सर्विस, नॉट ऑन टाइम एक्सेट्रा. दैट इज वाई वी डिफॉल्टेड. ओके. Okay, then came demand for unpaid. The payment of the unpaid demand. So by sending an attested copy of the electronic record and by sending an attested copy of the encash check, the payment of, सो अगर ये है तुम्हारा कॉर्पोरेट डेटर, वो बोल रहा है कि नहीं भाई मैंने तो पूरा पे कर दिया है, ये लो आपका इलेक्ट्रॉनिक जो ट्रांसफ़र किया ये मेरा प्रूफ है, और जो पैसा आपको या चेक एनकैश हुआ ये इसका प्रूफ है. तो डेटर कैन से दैट आई हैव ऑलरेडी पेड इट. द मैटर गोज ऑन. देन सेक्शन 9 में आफ्टर एक्सपायरी ऑफ 10 days अभी भी मेरे को अगर पैसा नहीं मिला तो मैं फिर बाद में एप्लीकेशन फाइल करूँगा. एप्लीकेशन जब फाइल करेंगे तो वील सी वो एप्लीकेशन भी कैसा रहता है. दिस इज़ द बिफोर द NCLT. ओके, सेक्शन 9 के अंदर जो केस फाइल करते हैं, इट इज़ रेड विथ रूल 6. तो ऑपरेशनल क्रेडिटर वाज दिस एंड जो कॉर्पोरेट डेटर था तो उसका पूरा हम लोग देते हैं डिटेल्स, पूरा NCLT पिटिशन पूरा फाइल किया हम लोग ने. क्लियर है ना. देन अब जब गए तो उस पेटिशन के अंदर ये सारे अटैचमेंट्स होने ज़रूरी है. तो जैसे तुम NCLT के में जाओगे वो लोग एक एक बैठेंगे तुम्हारे पेटिशन के साथ में और बोलेंगे ये है वो है किधर है ये किधर है. तो सबसे पहले क्या मांगेंगे, इनवॉइस डिमांडिंग द पेमेंट, मतलब डिमांड नोटिस मांगेंगे. सबसे इंपॉर्टेंट डिमांड नोटिस कौन से सेक्शन के अंदर है, सेक्शन 8 में जो बोला है कंपलसरी आपको डिमांड नोटिस देना, उसका प्रूफ का है. फिर उसके साथ में एक एफिडेविट मांगेंगे दैट कोई भी डिस्प्यूट नहीं है, मतलब मेरे को बताना पड़ेगा कि भाई मैं केस फाइल कर रहा हूँ ऑन बिहाफ ऑफ द ऑपरेशनल क्रेडिटर. तो मैं बोलूँगा कि नहीं भाई कोई डिस्प्यूट नहीं है, ये जेन्यून अमाउंट है, उसने डिफ़ॉल्ट किया है, आप प्लीज़ इंसॉल्वेंसी प्रोसीडिंग चालू करो. एफिडेविट देना पड़ेगा. एक सर्टिफिकेट देना पड़ेगा फ्रॉम द बैंक, मेरी बैंक के पास से देना पड़ेगा कि कोई भी पेमेंट आया नहीं है उसकी तरफ से. मेरे को इन्फॉर्मेशन यूटिलिटी में भी अगर उसने कोई डिफ़ॉल्ट किया है, कॉपी ऑफ द रिकॉर्ड विद द इन्फॉर्मेशन यूटिलिटी जो रिकॉर्ड मेंटेन करेगी डेटर्स के, उसके भी डेटर्स में कहीं पे भी लिखा नहीं है कि पेमेंट हो चुका है. एनी अदर प्रूफ दैट इज़ देयर. अब जो ऑपरेशनल क्रेडिटर है, इफ़ ही वांट्स ही मे ऑल्सो गिव द नेम ऑफ द इंटरिम रेजोल्यूशन प्रोफेशनल. उसको कौन चाहिए कि पूरा IRP प्रोसेस करेगा. अब वापस एप्लीकेशन फाइल हुआ अलॉन्ग विद द अटैचमेंट, अलॉन्ग विद द फीस, अलॉन्ग विद द डिमांड नोटिस. जैसे फाइल होगा तो NCLT को 14 दिन का टाइम मिलता है. या तो एक्सेप्ट करेंगे या तो क्या कर देंगे, तुम्हारा एप्लीकेशन रिजेक्ट कर देंगे. बट जब भी रिजेक्ट करेंगे कितने दिन का टाइम मिलेगा तुमको, 7 दिन का
रिस्पॉन्स टाइम मिलेगा टू रेक्टिफाई द डिटेल्स. अब अगर जिस दिन वो लोग ने एक्सेप्ट कर लिया NCLT में, देन उस दिन पे इट विल बी सेड दैट द कमेंसमेंट ऑफ द CIRP प्रोसेस. तो जैसे NCLT ने तुम्हारा एप्लीकेशन एक्सेप्ट कर लिया, जैसे वो लोग ने एक्सेप्ट कर लिया, उस टाइम पे इट विल बी सेड दैट द कमेंसमेंट ऑफ द CIRP प्रोसेस हैज टेकन प्लेस. अब ये क्यों इंपॉर्टेंट है कमेंसमेंट ऑफ CIRP? बिकॉज उस दिन पे मोराटोरियम पीरियड डिक्लेयर हो जाएगा. मोराटोरियम पीरियड क्या है? स्टे ऑर्डर. अगर तुम NCLT के शेल्टर में आ गए तो तुम्हारे ऊपर कोई केस कुछ भी नहीं हो सकता. तो क्रेडिटर जो डेटर भी है वो बच जाएगा. वो डेटर को बोलेंगे भाई अभी कोई नया एसेट नहीं होगा, कोई केस नहीं होगा, कुछ एक्शन नहीं ले सकते, कुछ भी नहीं, स्टे ऑर्डर, मोराटोरियम. हमको रेजोल्यूशन प्रोफेशनल को अपॉइंट करने दो, देखने दो क्या प्लान बन रहा है, देखेंगे कैसे रिवाइव होगा. सो दैट इज़ वाई इट इज़ इम्पॉर्टेंट कि कब कमेंस होता है. जैसे कमेंस होता है उस दिन के बाद में कोई भी नया केस क्रेडिटर नहीं कर सकते. नेक्स्ट सेक्शन 10. सेक्शन 10 देखा था हम लोग ने. कौन केस फाइल कर रहा है? खुद कॉर्पोरेट डेटर. अगर उसने डिफ़ॉल्ट कमिट किया, उसको लग रहा है कि उसने डिफ़ॉल्ट कमिट कर दिया, वो खुद ही केस फाइल कर देगा. वो अपने एप्लीकेशन के साथ में देगा बुक्स ऑफ अकाउंट्स, उसका वो मेंशन करेगा इंटरिम रेजोल्यूशन प्रोफेशनल कौन है और कंपनी का स्पेशल रेजोल्यूशन दैट दे हैव अग्रीड टू फाइल दिस इंसॉल्वेंसी प्रोसीडिंग्स. Why they file? Because they go in NCLT, get a moratorium period, stay order, nothing new can be filed. Once that is done, then they get a breathing space. They can take steps to revive themselves. NCLT वापस will get 14 days time to either admit the application or reject. पर जब भी रिजेक्ट करेंगे तो उनको कितने दिन का टाइम देना पड़ेगा रेक्टिफाई करने के लिए? 7 days का टाइम. और एक बार एडमिट हो गया तो देन द मोराटोरियम पीरियड starts. It from the date of admission the CIRP process will begin. Further, section 11 says who can not file cases. तो ये लोग केस नहीं फाइल कर सकते हैं. कौन है? अगर उनका ऑलरेडी CIRP प्रोसेस चालू है या फिर दे हैव डन अ CIRP प्रोसेस विद इन द पिछले 12 महीने के अंदर वो लोग ने ऑलरेडी इनका रिवाइवल का प्लान हुआ था तो वापस नहीं अप्लाई कर सकते. आफ्टर 12 months दे कैन. If they have violated the terms of CIRP process or whether corporate debtor in respect of whom has liquidation order has been passed. तो जिसका already liquidation order pass हो गया है वो फिर CIRP में process नहीं कर पाएगा. Then they give you the time limit to complete the insolvency resolution process. कितने टाइम में complete हो जाना चाहिए? तो सबसे पहले बोल रहे हैं कि वो 180 days में complete हो जाना चाहिए. ओके और जो भी डिसीजंस है इट विल बी टेकन बाय द कमिटी ऑफ क्रेडिटर्स बाय 66%. सब जगह 75% था बट उसको लिमिट करके 66 कर दिया है. सो द रेजोल्यूशन एप्लीकेशन प्रोफेशनल शैल फाइल एन एप्लीकेशन टू एक्सटेंड द टाइम पीरियड ऑफ बियॉन्ड 180 days. ओके अगर दिया तो उसको एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी विल रियलाइज कि यार मैटर को थोड़ा और एक्सटेंड करना ज़रूरी है तो दे विल एक्सटेंड एंड दे विल गिव अ फॉर नॉट मोर देन 90 days. तो 180 days इज द नॉर्मल टाइम लिमिट दैट यू गेट. 90 days का एक्सटेंशन मिल सकता है. तो टोटल कितना हुआ? 270 days में मैटर ख़त्म कर देना है. बट 270 days भी है तो गवर्नमेंट ने रियलाइज़ किया कि थोड़ा और टाइम लिमिट व्हेन द 270 days के आसपास ही ख़त्म होने वाला रहता है तो भी उतना टाइम ग्रांट कर सकते ग्रेस. एंड एक्चुअली इट शुड बी mandatorily completed within a period of 330 days from the insolvency commencement date. तो इसलिए insolvency commencement date क्या है? जब NCLT मैटर को अप्रूव करता है, एडमिट करता है, वहाँ से लेके 330 days के अंदर मैटर खत्म हो जाएगा. नेक्स्ट विड्रॉवल ऑफ केस. सेक्शन 12A में क्या लिखा है? दैट अगर जो भी एप्लीकेंट है और एप्लीकेंट ने रियलाइज़ किया कि दे वांट टू विड्रॉ द पिटिशन, एन एप्लीकेशन मेड बाय द एप्लीकेंट विद द अप्रूवल ऑफ 90% ऑफ द कमिटी ऑफ क्रेडिटर्स. कॉम्प्रोमाइज हो गया होगा, दे मस्ट हैव 90% ऑफ द कमिटी ऑफ क्रेडिटर्स यू कैन टेक एंड विड्रॉ द एप्लीकेशन. क्लियर है ना? सो दिस इज योर 12A. यहाँ से भी हु कैन इनिशिएट विथ सेक्शन
who can initiate CIRP process? So it is given under section 6, financial creditors, operational creditors and your corporate debtors can initiate the process. Next, briefly explain the process of initiation of CIRP process. तो process of CIRP क्या है? डिफ़ॉल्ट होगा तो डिफ़ॉल्ट के टाइम पे केस फाइल करना पड़ेगा. केस फाइल किया तो फिर बाद में 14 डेज़ का टाइम NCLT को मिलता है, या तो एडमिट या तो रिजेक्ट करेंगे तो 7 डेज़ का टाइम देना पड़ेगा एप्लीकेंट का रिस्पॉन्स के लिए. आफ्टर दैट देन द जैसे डिक्लेयर किया कमेंसमेंट विल स्टार्ट विद इन 330 डेज द मैटर विल बी रिजॉल्व. मेंशन द स्टेप्स इन्वॉल्व इन CIRP प्रोसेस बाय ऑपरेशनल क्रेडिटर. तो ऑपरेशनल क्रेडिटर सीधा डिफ़ॉल्ट के टाइम पे केस नहीं कर सकता है. डिफ़ॉल्ट होगा तो उसको डिमांड नोटिस देना पड़ेगा सेक्शन 8 के अंदर, दैट इज़ इन फॉर्म 3 रूल 5. वो लोग देंगे कि डिमांड नोटिस देंगे. डिमांड नोटिस दिया उसके 10 दिन के बाद में 10 दिन के अंदर पेमेंट नहीं आया तो 10 दिन के बाद में वो लोग सेक्शन 9 के अंदर केस कर देंगे. व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय कॉर्पोरेट एप्लीकेंट? एक्सप्लेन द प्रोसेस फॉर अंडर दिस कॉर्पोरेट एप्लीकेंट. तो ये किस में होगा? सेक्शन 10. ये किसका था? सेक्शन 8 एंड 9. और इसका क्या था? सेक्शन 7 के अंदर. तो कॉर्पोरेट डेटर भी डिफ़ॉल्ट के टाइम पे फाइल करेगा, वो अटैचमेंट्स देगा, वो इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन प्रोफेशनल कौन होगा वो बताई देगा, फॉर्म एंड फीस में देगा. देन एडमिट, रिजेक्ट किया तो 7 डेज़ का टाइम. हु आर नॉट एंटाइटल्ड, तो सेक्शन 11 के अंदर दिया है कि हु आर नॉट एंटाइटल्ड, जिसके अगेंस्ट पास्ट 12 मंथ्स के अंदर CIRP प्रोसेस ऑलरेडी हो चुका है. नेक्स्ट, दोज who are under liquidation order has been passed, who have committed a default, etc. Whether an application once admitted under this 7, 9 and 8, 7, 9 and 10, क्योंकि 8 में तो डिमांड नोटिस होता है तो 7 के अंदर फाइनेंशियल क्रेडिटर फाइल करेगा, 9 के अंदर ऑपरेशनल क्रेडिटर फाइल करेगा एंड कॉर्पोरेट डेटर विल फाइल अंडर सेक्शन 10. कैन बी विड्रॉन, तो विड्रॉ भी हो सकता है. व्हाट इज़, तो विड्रॉ हो सकता है 90% ऑफ कमिटी ऑफ क्रेडिटर्स का कंसेंट लेकर. ये किस में दिया है? सेक्शन 12A. एंड टाइम लिमिट टू कंप्लीट द CIRP प्रोसेस इज गिवन अंडर सेक्शन 12. इन हाउ मेनी डेज इट शुड गेट कंप्लीटेड? In how many days this should get completed? So 180 days normally, 90 days more extension and still more extension can be given and you will get 330 days के अंदर matter has to be resolved. That is it. Any doubts? You all can let me know. So this is the entire process.